الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش سیزن 17 اور الحمدللہ بڑھتے بڑھتے یہ اب 6th ایپیسوڈ پر 6ٹھی قسط پر پہنچ چکا ہے. 5 ٹیمیں کوالیفائی ہو چکی ہیں. آج مقابلہ بہت خوبصورت ہونے کی امید ہے کیونکہ خیبر پختونخوا سوات سے ہمارے اسلامی بھائی پہاڑوں سے آئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور داتا حضور کے شہر سے جو ٹیم ہے وہ موجود ہے. تو لاہور اور سوات کے درمیان مقابلہ ہے. کل ہم نے ایک اپسیٹ دیکھا کہ بلوچستان کی ٹیم اسلام آباد سے آگے بڑھ گئی، تو کیا آج سوات والے لاہور سے آگے بڑھیں گے یا لاہور والے اگلی جو ہے وہ سیٹ اپنی کنفرم کریں گے؟ ناظرین، آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں علم دین سیکھنے کی نیت سے ہمارے ساتھ شامل رہیے، کالز کرتے رہیے. وقتاً فوقتاً آپ کی کالز بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے. یاد رہے ہم آپ سے سوال بھی کرتے ہیں، اس سوال کے جواب پر قرآن اندازی بھی کرتے ہیں اور اس کا تحفہ گھر بیٹھے ناظرین کو بھی دیتے ہیں، اسٹوڈیو میں موجود حاضرین کو بھی دیتے ہیں. تو سب ریڈی ہو جائیں، سوالات ہوں گے، جوابات ہوں گے اور تحائف ہوں گے. وقت ہوا ہے کہ دونوں ٹیموں کو منچ پہ بلائیں گے. خیبر پختونخوا اور لاہور کے اسلامی بھائی سوات اور لاہور کے اسلامی تشریف لائیں. جستجو ہے دین کا پیغام یا رب، پرچموں میں سب سے اونچا پرچم اسلام. ماشاءاللہ جناب، وقت ہوا ہے ناظرین، آپ کو دکھاتے ہیں کہ کل جو مقابلہ ہوا تھا اس کے نتیجہ کیا نکلا، اس کے کچھ مناظر آئیے دیکھتے ہیں. مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش. کفار کی طرف بھیجے جانے والے سب سے پہلے رسول کون ہیں؟ کفار کی طرف بھیجے جانے والے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب ہم بلاتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. 33 نمبر ہے استا محمد، 31 نمبر ہے اسلام آباد والوں کے. 2 نمبر سے استا محمد والے آگے ہیں. اب دونوں آخری اسلامی بھائیوں پر اپنی دونوں ٹیموں کی ذمہ داری ہے. جمرات یعنی شیطانوں پر کنکریاں مارنے کو سعی کہتے ہیں. غلط. سورہ کوثر میں 3 آیات ہیں، جلدی کریں. نور والا آیا ہے، کلام مولانا حسن ندا خان صاحب کا ہے. غلط. جنت البقیع مکے میں ہے. غلط. آپس میں ملاقات کے وقت گلے ملنے کو معانقہ کہتے ہیں. صحیح. دیکھنا یہ ہے کیا کوئی غلطی کی ہے. 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے. بلوچستان والوں نے کمال کر دیا ہے ناظرین، آج مقابلہ جیت گئے ہیں. اسلام آباد والوں کو پھر تیاری کر کے آنا ہے، ایک موقع ملے گا. بلوچستان والے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. ماشاءاللہ کل ہم نے دیکھا بلوچستان کے اسلامی بھائی اوستا محمد سے آئے اور اسلام آباد جیسی ٹیم کو پیچھے چھوڑا. اب دیکھنا ہے سوات یا لاہور. آئیے ناظرین سوات والوں سے تعارف حاصل کرتے ہیں، کیا نام ہے، کیا مصروفیات ہیں، اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شاہ حسین ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد صبور ہے اور میں جامعہ قادریہ مردان سے فراغت ہوئی ہے میری ماشاءاللہ. اور ابھی سوات میں ہی امامت خطابت کے ماشاءاللہ خدمات. جامعہ قادریہ سے تعلق بھی ہے، امامت بھی کرتے ہیں. کیسے ذہنی آزمائش میں آنے کا آپ کا ذہن بنا؟ یہ ہمارے ساتھی ہیں مدین سوات کے، تو وہ پچھلے سال بھی آئے تھے یہاں مقابلے میں، انہوں نے شرکت کی تھی تو انہوں نے ذہن بنایا. تو کیا بات ہے ماشاءاللہ. جی اگلے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نعمت اللہ ہے اور میرا والد محترم کا نام عبدالرزاق ہے. میں سوات کے علاقے میں اندم سے تعلق رکھتا ہوں اور ابھی میں مدرسے کا طالب العلم پڑھتا ہوں. کون سے مدرسے کے طالب علم ہے؟ یہ مردان کے قریب ہے، جامعہ اسلامیہ محمدیہ نام ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا کہتے ہیں آپ کو بھی ماشاءاللہ. جی تیسرے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ریحان خان اور والد کا نام عالم شیر ہے. میں دیر کے رہنے والے ہوں. کیا بات ہے. اور کیا کرتے ہیں، مصروفیات کیا ہیں؟ اب پڑھاتی ہوں. آپ پڑھاتے ہیں؟ ہاں جی. کیا پڑھاتے ہیں؟
اولا میں پڑھتے ہوں. پڑھتے ہیں. اچھا اولا میں پڑھتے ہیں. چلیں یہ پڑھاتے پڑھتے تھوڑا بہت تو اوپر نیچے ہوتا رہے گا. سواد کے آئے ہیں ماشاءاللہ. آئیے ناظرین سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری جو ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے. اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. ذہنی آزمائش آیا رب کی رحمت ساتھ آیا علم خزانہ ہاتھ آیا ذہنی آزمائش آیا سیزن 17. ناظرین آج خیبر پختونخوا کے ایک خوبصورت شہر سوات میں آڈیشن ہوگا. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سوات آڈیشن کی طرف. کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر. سورت جین میں جنات کا ذکر ہے, ان کی تعداد کتنی تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ جن کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ وہ 9 جن تھے. خدا بند عالم کا دیدار ہوگا. نبی کی بدولت بروز قیامت خداوند عالم کا دیدار ہوگا. ہمارا نصیبہ بھی بیدار ہوگا. جو دیکھیں گے ہم سبز گنبد نبی کا ہمارا نصیب بھی بیدار ہوگا. کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین اب آئیے دیکھتے ہیں لاہور کی ٹیم سے تعارف بھی حاصل کریں گے اور ان کے بارے میں جانیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اسامہ اتاری ہے. میرے والد صاحب کا نام ظفر حیات اتاری ہے. بیسیکلی میں سرگودا کی تحصیل ساہیوال سے ہوں لیکن میں لاہور پڑھتا ہوں. آئی ریسنٹلی کمپلیٹڈ FSc پری میڈیکل اور اس کے ساتھ ساتھ میں نائٹس جامعۃ المدینہ فیضانی مدینہ جوہر ٹاؤن میں 3rd ایئر کا طالب علم بھی ہوں. ماشاءاللہ مرحبا کہتے ہیں آپ کو. جی اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بلال رضا اتاری ہے اور میرے والد محترم کا نام کرامت علی ہے اور میں جامعۃ المدینہ اپر مال روڈ لاہور کا درجہ 7th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا بیسکلی تعلق پھول نگر کے گاؤں گمن کے سے. ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمر اتاری. میرے والد محترم کا نام محمد عمر دراز قادری ہے. بیسیکلی میرا تعلق شہر لاہور سے اور میں جامعۃ المدینہ مبارک ٹاؤن میں 5th ایئر کا طالب علم. ماشاءاللہ. مرکز الاولیاء لاہور جو کہ کئی بار فائنل میں ٹیم بھی پہنچی ہے, آگے بھی بڑھے ہیں. اس بار دیکھنا ہوگا لاہور کی ٹیم کا سفر کہاں تک رہتا ہے. کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں لاہور کے آڈیشن کے حوالے سے. آ گیا ذہنی آزمائش دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش آ گیا ذہنی آزمائش آ گیا ذہنی آزمائش آیا رب کی رحمت ساتھ لایا علم خزانہ ہاتھ آیا ذہنی آزمائش آیا سیزن 17. کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ آڈیشن جاری و ساری ہے داتا صاحب کے شہر لاہور کا. آ گیا ذہنی آزمائش دیکھو دیکھو آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا سرمہ استعمال فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جمعے ادا فرمائے؟ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسمت سرمے کو شرف بخشتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں 500 جمعے ادا فرمائے. انس کا انس اسی سے ہے, جان کی وہی جان ہے. ایک انہی کی رخ کی روشنی چین ہے تو جہان کی, انس کا انس انہی سے ہے, جان کی وہ ہی جان ہے. بتا تو اس سے تمہارا نے کیا نحال کیا, تو جس کے واسطے چھوڑایا طیبہ سا محبوب, بتا تو اس سے تمہارا نے کیا نحال. محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لاہور کی ٹیم کیسے پہنچی آپ نے مناظر دیکھے. ناظرین وقت ہوا ہے آپ سے ایک سوال ہم نے کیا تھا پروگرام کے آخر میں, اب اس کا جواب اور اس کی قرآن اندازی. سوال جو کیا گیا تھا کہ اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو
कितने दिन में पैदा किया है? तो दुरुस्त जवाब है 6 दिन में। बिनते शाकिर तारिया तरबेला गाजी बिनते अली मोहम्मद शाह अकीक बिनते अब्दुल कदीर तारिया लाला मूसा बिनते सज्जाद हुसैन बिन कासिम कराची गुलाम हुसैन तारी मीरपुर साकरो रियासत अली पत्तोकी बिनते इफ्तिखार हुसैन कोट सब्जल मोहम्मद मुश्ताक अत्तारी आरिफ वाला पंजाब जुहेब रज़ा मियाँ वाली शाहबान अत्तारी मियाँ चन्नू गुलाम मुस्तफ़ा फैसलाबाद बिनते संजर खान जैकब आबाद। आज जिस खुश नसीब का कुर्रा निकला है बिनते इफ्तिखार हुसैन कोट सब्जल, ये अपने महरम के जरिए रब्ता करें, इंशाल्लाह तोहफा पहुंचाया जाएगा। माशाल्लाह। यहाँ मैं जब आतिफ भाई को हम दिखा रहे थे कुरानदाजी में तो साथ एक बड़ा प्यारा सा बॉक्स मिस्की इतर का नज़र आ रहा था और मैंने इसको इस्तेमाल भी किया है। नाजरीन, बहुत प्यारे इतरियात हैं और ये सारे इतरियात मकतबतुल मदीना पर आपको मिल जाएंगे। और याद रहे कि मकतबतुल मदीना ये दावत इस्लामी का इदारा है, इसका नफ़ा, इसका नुकसान, इसका सब कुछ दावत इस्लामी का है। जब इतर ख़रीदने ही हैं, बल्कि अब तो परफ्यूम भी उन्होंने निकाल दिए हैं, तो अपनी किताबों के साथ साथ मकतबतुल मदीना से आप ये इतर भी हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर उम्मीद है कि नंबर्स ऑर्डर के लिए आ जाएंगे तो आप उसको ऑर्डर दे सकते हैं। इनके बाकायदा बॉक्सेस भी हैं तो ये भी आप हासिल कीजिए। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है आपसे आज का सवाल करने का, जो आपने मैसेज के जरिए जवाब देना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम क्या था? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जनाब ये तो पहली बार याद आएगा कि ज़ैनुल आबिदीन नाम नहीं था, तो फिर नाम कुछ और था। जी हाँ, नाम कुछ और है, वो जवाब दीजिए। और इसी तरह सवाल एक आपसे क्विज एप्लीकेशन पर किया जा रहा है। अगर अभी तक आपने ज़ैनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कर लें। और उसमें सवाल यह है कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बताएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम या हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, इन चार में से एक सही जवाब है। आप वो जवाब दीजिएगा और अपनी आईडी का नंबर भी सेव रखिएगा। आपको बताते हैं आज का प्रोग्राम किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। जी जनाब, इल्म नूर है, इश्क के बोल, 1500वां जश्न विलादत, फिक़ह हनफी और उसके दलाइल तलाश कीजिए, कुरानी मालूमात, सफर है मगर अकेले। पहले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है इल्म नूर है। पहला सवाल करेंगे स्वात वालों से। हर सवाल के जवाब में 2 नंबर मिलेंगे, आपस में मशवरा करके जवाब दीजिएगा। मगर याद रखिएगा आपके पास 25 सेकंड होंगे, अगर वो 25 सेकंड गुजर गए फिर आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। जन्नती खैमा कैसा होगा? स्वात वालों से सवाल है। अल्लाह हमें जन्नती खैमे में रहना नसीब फरमाए, दीदार नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का भी इस बारे में फरमाने आलिशान है, जन्नती खेमा कोकले मोती का है और इसका लंबाई आसमान में 60 गज का है और इसके हर कोने में मोमिन की घरवाली होते हैं जो दूसरे नहीं देख सकेंगी। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलीशान है, जन्नती खैमा खोखले मोती का है, उसकी लंबाई आसमान में 60 मील होगी, उसके हर कोने में मोमिन के घर वाले होंगे जिनको दूसरे नहीं देख सकेंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इमाम कुशैरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने शुक्र की कितनी अक़साम बयान फरमाई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम कुशैरी ने रिसाला कुशैरिया में शुक्र की 3 अक़साम बयान फरमाई। ज़बान का शुक्र ये है कि इज़्ज़ो इनकिसारी करते हुए अल्लाह पाक की नेमत का एतराफ़ करना, और उसके बाद जिस्म पूरे बदन का शुक्र ये है कि खिदमत और फरमा बरदारी से मुत्तसिफ़ होना, और दिल का शुक्र ये है कि अल्लाह पाक की हुर्मत की दायमी पासदारी के साथ उसकी बारगाह में हमेशा हाजिर रहना। सुभान अल्लाह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन का क्या मतलब है? क्या प्यारा सवाल है। सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन का क्या मतलब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का तमाम अंबिया किराम और इसकी उम्मत और क़यामत तक के आने वाले तमाम इंसानों से अफजल व आला है। सैयदुल मुरसलीन वल आखिरीन का यही माना है। और सैयद यानी सरदार वो होता है जो मर्तबे में दूसरों से अफजल व आला बुलंद व बाला हो। क्या बात है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम अंबिया किराम, उनकी उम्मतों और क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों से
افضل و आला हैं, और सैयद यानी सरदार वो होता है जो मर्तबे में दूसरों से अफजल व आला और बुलंद व बाला हो. सैयदी आला हज़रत लिखते हैं ना, सबसे औला व आला, सबसे बाला व आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा. सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी. अल्लाह पाक को, अल्लाह करीम को देखने के हवाले से मखलूक खुदा की अक़साम बताए. हज़रत सैयदना अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह पाक को देखने के हवाले से मखलूक खुदा की तीन अक़साम हैं. एक वो है जो अल्लाह पाक का दीदार की तलब तो रखते हैं लेकिन उसकी अज़मत और किबरियाई से यकसर गाफिल है. और एक वो हैं जो अल्लाह पाक का दीदार, अल्लाह पाक की अज़मत और किबरियाई से तो वाकिफ़ हैं लेकिन अल्लाह पाक के दीदार का जुरत करते हुए अल्लाह पाक की दीदार की ख्वाहिश करते हैं. और एक वो हैं जो अल्लाह पाक की हैबत और अल्लाह पाक की अज़मत और किबरियाई को जानते हुए क़तअन रोयत बारी ताला का तकाज़ा नहीं करते. और कभी कौल ये है कि ये आखिरी किस्म के लोग सबसे अफजल व आला हैं और यही बरोज़े क़यामत अल्लाह पाक के दीदार के सबसे ज्यादा हकदार होंगे. क्या बात है. अल्लाह करीम क़यामत के दिन हमें अपना दीदार नसीब फरमाए. जवाब दुरुस्त दे दिया है. जन्नत में जन्नतियों को जो सबसे बड़ा इनाम मिलेगा ना, वहां अल्लाह करीम का दीदार नसीब होगा. सुभान अल्लाह, क्या बात है. नबी पाक अलैहिस्सलाम की कामिल इत्तिबा की कितनी और कौन कौन सी सूरतें हैं? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा की चार सूरतें हैं. नंबर एक, अफ़आल में इत्तिबा, अक़वाल में इत्तिबा, अखलाक में इत्तिबा, अफ़आल में इत्तिबा, अक़वाल में इत्तिबा, अखलाक में इत्तिबा और अक़ाइद में इत्तिबा. अक़ाइद में इत्तिबा, अक़वाल में इत्तिबा, अखलाक में इत्तिबा और अफ़आल में इत्तिबा, यानी फॉलो करना है इन चारों चीजों में, अक़ाइद में, अक़वाल में, अखलाक में और अफ़आल में. जवाब दुरुस्त दे दिया है. अच्छा नेमतुल्लाह भाई, आपसे गुजारिश ये कि माशाल्लाह मैंने देखा आप जवाब दे रहे हैं, थोड़ा सा मशवरा कर लिया करें, ठीक है ना. आप फौरन जवाब दे देते हैं तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि इंसान से गलती हो सकती है, तो आप आपस में मशवरा करके जवाब देंगे तो गलती की गुंजाइश और कम हो जाएगी. अल्लाह पाक ने तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से क्या अहद लिया? अल्लाह पाक ने तमाम अंबिया कराम से ये अहद लिया कि अगर वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़माना पाएँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के साथ साथ उनकी हिमायत और नुसरत भी करें. जनाब अल्लाह पाक ने दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर फजलो एहसान फरमाते हुए उनसे ये अहद लिया था कि अगर वो नबी पाक अलैहिस्सलाम का जमाना पाए तो उन पर ईमान लाने के साथ साथ उनकी हिमायत और नुसरत भी करे. जवाब दुरुस्त दे दिया है. चले जनाब, ये तो सारे सवाल हो गए. अब थोड़ा सा सिलेबस से हट के सवाल होगा और फिर उसमें ऑप्शन भी दिए जाएंगे. पहली बारी हमारी स्वात वालों की है, इन्हें टॉपिक दिखाए जाए कि किस टॉपिक के तहत ये सवाल करेंगे. कुरान पाक, अंबिया किराम, प्यारे आका, सहाबा किराम, औलिया किराम या जनरल नॉलेज? कुरान पाक. कुरान पाक से मुतालिक सवाल करना चाहते हैं. लगता है हमें ये 6 टॉपिक भी चेंज करने पड़ेंगे अब. आगे आगे देखिए होता है क्या. जनाब, सूरह मरियम कौन से पारे में है? हाफिज साहब होंगे तो जल्दी बता देंगे, वरना आप चाहें तो मदद भी ले सकते हैं, या ऑप्शन हम देते हैं आपको हाजरीन में से मदद करने का. सूरह मरियम कौन से पारे में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सूरह मरियम 16वें पारे में है.
आपका कहना है 16वें सिपारे में है और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। लाहौर वालों की बारी है। कुरान पाक। कुरान पाक, चले जनाब कुरान पाक का सवाल। सूरह यासीन कहां नाजिल हुई? इसमें सूरह यासीन का पारा नहीं पूछा गया है, कहां नाजिल हुई। अब इसमें आप जवाब देंगे, शहर का नाम बताएंगे, चाहें तो आप मदद भी ले सकते हैं। कोई है मददगार भाई इस टॉपिक के जवाब में? अच्छा, एक हाथ तो उठाया है। मददगार के कौन से नंबर कटने हैं? वैसे हाथ उठा दिया होगा। चले जनाब मदद लेंगे। मदद लेंगे। किससे लेंगे? कौन अच्छा लग रहा है आपको? ब्राउन इमाम मशीन वाले, ये वाले चीफ वाले। अच्छा, वो वाले नहीं, वो आगे ब्लू इमामे वाले बैठे। ये वाले ये भाई खड़े हो जाए भाई। सूरह यासीन कहाँ नाजिल हुई? सूरह यासीन मक्का शरीफ में नाजिल हुई। मक्के शरीफ में, मक्की सूरत है ये बता रहे हैं। जी आप क्या फरमाते हैं? जी बिल्कुल ठीक है। ओके, बिल्कुल ठीक कह रही है। चले जनाब, आपने भी कहा मक्का शरीफ, इन्होंने भी कहा मक्का शरीफ, और मेरे पास जो जवाब लिखा हुआ है ना जनाब, वो भी मक्का शरीफ ही है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, अब बारी स्वात वालों की है। बताइए क्या टॉपिक लेंगे? अब कुरान पाक आप सेलेक्ट कर चुके हैं, अब कोई और टॉपिक लेना होगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत से मुतालिक सवाल होगा जनाब। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कब निकाह फरमाया? 1 हिजरी, 3 हिजरी या 7 हिजरी? दिस इज नॉट वेरी इजी क्वेश्चन। नबी पाक अलैहिस्सलाम से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत हफ्सा से निकाह किस सने हिजरी में फरमाया? जल्दी करेंगे, टाइम आपका खत्म हो गया है। 1 हिजरी। पूरा टाइम के अंदर जवाब दिया करें जनाब। बताइए क्या इनका जवाब दुरुस्त है? 3 हिजरी था, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। अब बारी है लाहौर वालों की। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलाम, सवाल क्या होगा? सवाल थोड़े से मुश्किल करते जाएंगे हम। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शोहर का नाम क्या था? हज़रत अबुल आस बिन अल रबी, हज़रत उस्मान या हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु? नंबर 1 हजरत अबुल आस बिन अल रबी। जी बताइए जनाब, क्या ये जवाब दुरुस्त है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, यहां तो सवाल पूरे हो गए हैं। स्वात वालों ने दिल छोटा नहीं करना, अभी मुकाबला बहुत आगे बाकी है। यहां सवाल करेंगे मगर उससे पहले 1 या 2 कॉल शामिल करते हैं। जी मक्का मुकर्रमा की पुरकैफ बाज़ोक फ़दाओं से हाजी अब्दुल हबीब अतारी को सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्के से सलाम आया, सुभान अल्लाह। जी उबैद रज़ा तारी बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, ज़हनी आजमाइश फिर से इल्म दीन की शमा को हमारे दिलों में रोशन कर रहा है। अल्लाह पाक ज़हनी आजमाइश की सारी टीम को बरकतें अता फरमाए। इंशाअल्लाह सारी टीमें, हाज़रीन, सामीन, मदनी चैनल देखने वाले सारे मदीने जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे अहले सुन्नत को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। आपका सदका हम सबको बार बार हरमैन तय्यबैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मक्के से इतनी प्यारी आपने हमें दुआएं दी, माशाल्लाह। एक और कॉल दीजिएगा। माशाल्लाह, आज मेरा बेटा हाफिज मोहम्मद उमैर लाहौर की टीम में सिलेक्ट होकर ज़हनी आजमाइश के मंच पर पहुंच चुका है। अपने बेटे के लिए और ज़हनी आजमाइश की सारी टीम के लिए दुआ को हूँ। अल्लाह सारी टीम को, खुसूसन अब्दुल हबीब भाई को बरकतें अता फरमाए। सारे बच्चे अपने हैं, अल्लाह सब बच्चों को कामयाबियां अता फरमाए और सब बच्चों को ज़हनी आजमाइश के तवस्सुल से मदीना पाक की बार बार अदब हाज़िरी अता फरमाए। वाह भाई वाह, उमर भाई आपके वालिद साहब ने कॉल बड़ी प्यारी की। सारे बच्चे अपने, वाकई दुआ सबके लिए करनी चाहिए और अल्लाह सबको कामयाबी दे, हम सबको मदीने की हाजिरी मिलकर अता फरमाए। चले जनाब, ये कॉलें भी हो गई। सवाल कीजिए आतिफ भाई। सवाल थोड़ा दिलचस्प है और जो दुरुस्त जवाब देगा उसको इंशाअल्लाह मकतबतुल मदीना की बड़ी प्यारी किताब है खजीना रहमत, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं पर मुश्तमिल जो है ये किताब है, ये इंशाअल्लाह ये तोहफे में देंगे। सवाल है कि इंजील किस ज़बान में नाजिल हुई? इंजील
किस जबान में नाजिल हुई? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मैं सुरजानी टाउन न्यू कराची से आया हूँ। माशाअल्लाह। इंजील सिरियानी ज़बान में नाजिल हुई है। सिरियानी ज़बान में, जी जनाब। इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। कहाँ से पता चला? ये बड़ा यूनिक सवाल था, कहीं सुना था आपने, पढ़ा आपने? जामियतुल मदीना। वाह भाई वाह, देखिए जामियतुल मदीना में पढ़ते हैं, जब तो ऐसा प्यारा जवाब दिया, माशाअल्लाह। तोहफा दें भाई ने। चले इंशाल्लाह ये किताब इन्हें दे रहे। माशाअल्लाह। अगला सवाल कीजिए। दूसरा सवाल ये है कि मशहूर मुअज्जिन रसूल का नाम बताइए। मशहूर मुअज्जिन रसूल का नाम, ये किसी बच्चे से इसका जवाब ले लेते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोइनुद्दीन है। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु। जनाब जवाब दुरुस्त है और ये इंशाल्लाह इतर शरीफ इन्हें दे रहे हैं। माशाअल्लाह। अच्छा चलिए, एक और मौज़िन रसूल भी हैं, ऐसे तो और भी हैं, लेकिन एक मौज़िन रसूल जो कि नाबीना थे, उनका नाम कौन बताएगा? नाजरीन नॉर्मली मौज़िन रसूल हजरत बिलाल हबशी का ही नाम लेते हैं, हमने कहा कि दूसरे साहबी का नाम भी पता चले। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम गुलाम साबिर अत्तारी है और मैं फैसलाबाद से हाजिर हुआ हूँ। माशाअल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु जी, हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह तआला अन्हु, बड़ा प्यारा जवाब दिया, जवाब दुरुस्त दे दिया माशाअल्लाह। इंशाल्लाह इनको अजायबुल कुरान किताब इंशाल्लाह तो माशाअल्लाह। चले जनाब, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। आइए नाजरीन, स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। स्वात वालों के 8 नंबर हैं, लाहौर वालों के 10 नंबर हैं। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है इश्क के बोल। कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ऐ रज़ा, कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ऐ रज़ा। मुश्ताक़ तब्अ लज़्ज़त सोज़े जिगर की है, मुश्ताक़ तब्अ लज़्ज़त सोज़े जिगर की है। जनाब सवाल करेंगे स्वात वालों से, इश्क के सरवर में जो हस्ती को फना करते हैं, इश्क के सरवर में जो हस्ती को फना करते हैं, इश्क सरवर में जो हस्ती को फना करते हैं, भेद उल्फत के फकत उन पे खुला करते, भेद उल्फत के फकत उन पे खुला करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मालो दौलत की दुआ हम ना खुदा करते हैं। माल और दौलत की दुआ हम ना खुदा करते हैं, हम तो मरने की मदीने में दुआ करते हैं। हम तो मरने की मदीने में दुआ करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मालो दौलत की दुआ ना खुदा करते हैं। मालो दौलत की दुआ ना खुदा करते हैं। तो मरने की मदीने में दुआ करते हैं। आप आकाओं के आका, आप हैं शाहे अनाम। आप आकाओं के आका, आप हैं शाहे अनाम। या रसूल अल्लाह मैं हूँ आपका अदना गुलाम। या रसूल अल्लाह मैं हूँ आपका अदना गुलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आप आकाओं के आका, आप हैं शाहे अनाम। आप आकाओं के आका, आप हैं शाहे अनाम। या रसूल अल्लाह में वो आपका अदना गुलाम। बात की हिम्मत नहीं पड़ती, अदब का है मकाम।
बात की हिम्मत नहीं पड़ती, अदब का है मकाम, दिल इजाजत ही नहीं देता, करूं कैसे कलाम। दिल इजाजत ही नहीं देता, करूं कैसे कलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर। ए काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली फिर हो। रोती हुई तैबा को बारात चली हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दो सोजे बिलाल आका मिले दर्द रजा सा। सरकार अता इश्क़ वैसे करनी हो। कार अता इश्के वैसे करनी हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। से बिलाल आका मिले दर्द रज़ा सा, से बिलाल आका मिले दर्द रज़ा सा, सरकार अता इश्क़े वैसे करनी हो। रोजे के करीब आकर गिर जाऊं मैं गश खाकर। रोजे के करीब आकर गिर जाऊं मैं गश खाकर, हो जाए तुम्हारा फिर दीदार मदीने। हो जाए तुम्हारा फिर दीदार मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कब तक मैं फिरूं दर दर, मरने भी दो अब सरवर। दहलीज पे सर रखकर सरकार मदीने में। दहलीज पे सर रखकर सरकार मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कब तक मैं फिरूं दर दर, मरने भी तो अब सरवर, दहलीज पे सरकार मदीने में। दहलीज पे सर रख कर सरकार मदीने, हम मिटते हैं जहाँ के आला मदीने। रोज़े के करीब गिर जा रोज़े के करीब आकर गिर जाऊं मैं गश खाकर, हो जाए तुम्हारा फिर दीदार, हो जाए तुम्हारा फिर दीदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत कलाम है अमीर अहले सुन्नत का। मिटते हैं जहां भर के आलाम मदीने में, बिगड़े हुए बनते हैं सब काम मदीने में। अब शेर दिखाया जाएगा मगर उसको आपने एग्जैक्टली लफ्ज ब लफ्ज हमें बताना है। बताइए कौन सा शेर है स्वात वालों के लिए। मैं क्यों गैर की ठोकरे खाने जाऊं, दर से तेरे अपना गुजारा करूं मैं, तेरे गम से अपना गुजारा करूं मैं, तेरे दर से अपना गुजारा करूं मैं। इन तीनों में से कोई एक लाइन दुरुस्त है। और याद रहे नाजरीन, ये शेर इनके सिलेबस में नहीं होता, हम सिलेबस से हट के कलाम लाते हैं ताकि थोड़ा सा मजीद मुश्किल हो जाए। जी तीसरा मिसरा सही है। तीसरा मिसरा सही है। तेरे दर से अपना गुजारा करूं मैं। स्वात वालों ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मैं क्यों घर की ठोकरें खाने जाऊं, मैं क्यों घर की ठोकरें खाने जाऊं, तेरे दर से अपना गुजारा करूं, तेरे दर से अपना गुजारा करूं, दिलो जाने सारा करूं। लाहौर वालों की बारी है। दिखाइए शेर। निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी हैं, लिए हुए तो दिले बेकरार हम भी हैं,
लिए हुए ये दिल बेकरार हम भी। वेरी ट्रिकी जनाब। दूसरा, लिए हुए तो दिल बेकरार हम भी हैं। अच्छा, अगर मुझसे भी पूछा जाता ना तो मैं भी यही जवाब देता जो इन्होंने दिया है, लेकिन आज मेरी भी तस्हीह हुई है, लिए हुए ये दिल बेकरार हम भी हैं, यानी पहला मिसरा जो था ये दुरुस्त था और आपसे गलती हो गई है। जनाब, निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए ये दिल बेकरार हम भी हैं। गलती हुई है, शेर तर्ज में सुना दीजिए। निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, निगाहे लुत्फ के बारी यहाँ इस्लामी भाइयों की है और देखें कौन शेर सुनाता है। मैं दूसरी लाइन पढ़ूंगा, पहली लाइन आपने सुनानी है, हैं? जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अरसलान अत्तारी औरंगी टाउन से हाजिर हुआ हूँ। जी, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को हाय खबर हाय, ऐसे पुल से गुजार दीजिए, ऐसे हल्के फुल्के होके हुजूर गुजर जाएं कि ज़रत जिब्रील पर भी बिछाएं तो उनके पर को भी पता ना चले। जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इंशाअल्लाह मुतबर्रक पानियों का मजमुआ। सुभान अल्लाह। पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछा तो पर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना। अपनी बनी हम आप बिगाड़े, अपनी बनी हम आप बिगाड़े। जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इश्तियाक अहमद अत्तारी है, मैं फैसलाबाद से हाजिर हुआ हूँ। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, मरहबा। शेर पूरा। अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाते ये, कौन बनाए बनाते ये हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अपनी बनी हम आप बिगाड़े, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाते ये है, कौन बनाए बनाते ये है। चलिए जनाब, कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं, फिर स्कोर बोर्ड देखते हैं। जी, मोहम्मद गफरान रजा तारी अर्ज कर रहा हूँ मदीना सवाद से। अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार सवाद की टीम ज़हनी आजमाइश में आ गई है और अल्हम्दुलिल्लाह सवाद बल्कि पूरी खैबर पख्तूनख्वा में इस्लामी भाई इज्तिमाई तौर पर ये सिलसिला जो है वो देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सवाद का एडिशन भी जो है वो तारीख और यादगार हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। चले जनाब, बड़ी हमें भी खुशी हो रही है कि स्वात के टीम को सपोर्ट भी कर रहे लोग। खैबर पख्तूनख्वा में इज्तिमाई तौर पर सिलसिला देखा जा रहा है। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। और हमारी एक नीयत ये भी होती है मुख्तलिफ शहरों को, मुख्तलिफ जामियात को, मुख्तलिफ शोबाजात को इन्वॉल्व करने का। उम्मीद है कि जो ये सुन्नी जामियात से हमारे दोनों भाई नेमतुल्लाह भाई और शाह हुसैन भाई आए, आपके जामियात में भी देखा जा रहा होगा, तलबा असातिज़ा में भी खुशी की लहर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह इससे मोहब्बतें भी बढ़ती हैं। एक और कॉल दीजिएगा।
मैं मोहम्मद एजाज चिश्ती अतारी, जिला अटक, तहसील पिंडी के मदरसतुल मदीना बालिगान। माशाअल्लाह हाजी अब्दुल हबीब भाई, हमारे रुकनी शूरा साहब का प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश बड़ी शिद्दत से इंतजार था। 17 सीजन चलेगा, देखेंगे इंशाअल्लाह। अभी देख रहे हैं, मेरा बच्चा है मोहम्मद जैनुल आबदीन 12 साल का, वो भी बड़े शौक से देखता है। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम। अल्लाह आपको, आपके पूरे घराने को सलामत रखे। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। अच्छा जनाब, चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है जनाब? मुकाबले ने फिर पलटा खाया है। खैबर पख्तूनख्वा स्वात वाले पीछे थे, मगर अब दोबारा बराबर हो गए हैं। दोनों टीमों के 18-18 नंबर है। अगला सेगमेंट है 1500वां जश्न विलादत। जनाब, दोनों टीमों के इस्लामी भाइयों की तरफ से एक एक इस्लामी भाई आएंगे। पहले स्वात वालों की बारी है, तशरीफ लाइए। 15 बॉक्सेस में से एक बॉक्स आपने खोलना है और उसमें से जो आपके लिए वहां निकलेगा, क्या टॉपिक है उसमें 15 नाम बताने होंगे। जनाब कौन सा बॉक्स खोलेंगे? 5वां नंबर खोल रहे हैं जनाब। बॉक्स में से निकालिए, क्या है इसमें लिखा हुआ? मदनी चैनल के 15 प्रोग्राम के नाम। मदनी चैनल के 15 प्रोग्राम के नाम। ये सुन्नी जामियात वालों के लिए मुश्किल हो सकता है। वक्त शुरू होता है अब। मदनी मुज़ाकरा, ज़हनी आजमाइश, बातें हैं कुछ ख़ास, और खुले आंख सल्ले आला कहते कहते, और आराम से, भी टाइम है आपके पास, गौर कीजिए। जनाब मशवरा नहीं कर सकते। याद किया था जी? याद किया था, भूल गए या याद नहीं किया था? ये वाला टॉपिक हाँ, याद नहीं कर सके। चले और आएंगे याद। अभी है 20 सेकंड, गौर कर ले। 4 आपने बताए, आप 7 से ज्यादा बता देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। मदनी चले, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। दूसरे भाई आएंगे इंशाल्लाह, लाहौर के इस्लामी भाई आएंगे और इसमें से कोई बॉक्स खोलेंगे और देखते हैं कि उनके नसीब में क्या टॉपिक आता है। जी 4 नंबर जी, क्या है? शोहदाए ओहद में से किसी 15 के नाम। होए होए, शोहदाए ओहद में से 15 के नाम। चले जनाब, वक्त शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत सैयदना सलीम बिन अमर रदियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत सैयदना मुसैयब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत सैयदना साद बिन अशा रदियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत सैयदना यहाँ भी 4 नाम हुए हैं अभी तक। शोहदाए ओहद के 15 नाम नॉर्मली आसान नहीं होते। 3-4 नाम तो बड़े मशहूर हैं, जिनमें से अभी तक आपने 2 ही लिए हैं। हज़रत सैयदना अयास बिन अदी रदियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत सैयदना हज़रत सैयदना अनीस रदियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत सैयदना औस बिन अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत सैयदना औस बिन अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत सैयदना साद बिन रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हो। टाइम आपका पूरा हो गया है। कितने नाम ले सकें? ये 8 लिए हैं। आपको 1 नंबर मिलेगा, अपनी जगह तशरीफ रखेंगे। जनाब फिर बारी है खैबर पख्तूनख्वा के। अब दूसरे इस्लामी भाई आएंगे। नेमतुल्लाह भाई आ रहे हैं। माशाअल्लाह, बड़ा प्यारा इमामा है, कांधे पे प्यारी सी चादर है। अब देखें नेमतुल्लाह भाई क्या करते हैं। जनाब 3 नंबर खोल रहे हैं और उसके अंदर क्या है? असहाबे सुफ़्फ़ा के नाम। असहाबे सुफ़्फ़ा के 15 नाम बताएंगे आप। आपकी वक्त शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असहाबे सुफ़्फ़ा के नाम हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बिलाल बिन रबाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुस्तह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 9, 8, 9 तो हो गए मेरा ख्याल है। अभी है टाइम आपके पास, जल्दी पूरे कर लें। 11 हो गए। अच्छा माशाल्लाह, जल्दी करें। अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हो चुका था।
11 आपने किए हैं। आप सबसे मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुहैब बिन सनान रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला का भूल गए, जो सबसे ज़्यादा मशहूर इन असहाब सुफ़ा में। लेकिन आज नाज़रीन एक और बात मुझे भी सीखने को मिली कि कितने बड़े बड़े जलील कदर सहाबी असहाब सुफ़ा में थे। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी, हज़रत मुसअब बिन उमैर, हज़रत इन्होंने बताया हुज़ैफ़ा बिन यमान जो राज़दार रसूलुल्लाह थे। यानी आप सोचें कि असहाब सुफ़ा वो गरीब सहाबा थे जिनके पास रहने को घर नहीं होता था, पहनने को पूरे कपड़े नहीं होते थे, और उनको खाना नबी पाक की बारगाह से आता था। और ये इतने बड़े बड़े जलील कदर सहाबी थे। अल्लाह उनके मज़ारात पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन हम आपको एक ही नंबर दे सकेंगे। शाबाश माशाल्लाह। जनाब अब आइए लाहौर की टीम के इस्लामी भाई। इतना कुछ हमें भी सीखने को मिलता है माशाल्लाह ज़हनी आजमाइश के जरिए। जनाब 11 नंबर खोला इन्होंने, क्या है इसके पीछे? नमाज के 15 वाजिबात। नमाज के 15 वाजिबात बताएंगे जनाब। वक्त शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना, फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकत के अलावा हर रकत में अल्हम्द शरीफ की किरात करना, हर फ़र्ज़ वाजिब का उसकी जगह होना, हर रकात में रुकू का एक ही मरतबा होना, हर रकात में सुजूद का 2 ही मरतबा होना, हर रकात में सुजूद का 2 ही मरतबा होना, तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना, और इमाम को जहरी नमाज में बुलंद आवाज़ से किरात करना और गैर जहरी में आहिस्ता आवाज़ से किरात करना, गैर जहरी में आहिस्ता आवाज़ से किरात करना। मेरा ख्याल है अभी 6-7 हुए हैं, शायद 6 हुए हैं। जल्दी 2 तो कर ले ताकि 1 नंबर मिल जाए आपको। तकबीर कुनूत कहना, दुआए कुनूत पढ़ना वितर में। 8 हो गए। वाजिबात हैं कितने? अमीर अहले सुन्नत ने 30 वाजिबात तहरीर 30 लिखे हैं और आपको 15 बताने हैं, और अभी तक आप टाइम आपका पूरा हो गया। कितने बताए इन्होंने? 8 बताए हैं, तो 1 नंबर मिलेगा आपको। चले जनाब, बहुत अच्छी कोशिश की आपने। नाजरीन अब हम भी गौर करें कि हमें भी ये बातें मालूम है कि नहीं। अच्छा, बाज़ औक़ात होता क्या है कि 30 वाजिबात याद किए होते हैं, लेकिन जब लाइव प्रोग्राम हो, हाथ में माइक हो और घड़ी की टिक टिक चल रही हो तो अच्छे भूल जाते हैं। तो ये ना समझा जाए कि ये मालूमात इनके पास नहीं होगी, लेकिन जाहिर है कि एक प्रेशर होता है। बहरहाल बहुत अच्छी काविश, बहुत अच्छी कोशिश। स्कोर बोर्ड की तरफ जाने से पहले एक कॉल लेते हैं और फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी रहमान अत्तारी मरकज़ुल औलिया लाहौर से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाल्लाह हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब का बड़ा ही प्यारा सिलसिला बनाम ज़हनी आज़माइश सीज़न 17 अपनी धूम में मचा रहा है। और माशाल्लाह आज तो हमारे शहर लाहौर की टीम भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब के इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने दुआओं से नवाजा। कॉल करके लोग ये कहते हैं कि अब्दुल हबीब अत्तारी का सिलसिला देखें। ये सिलसिला मदनी चैनल का है, दावत इस्लामी का है। इनकी मेहरबानी है मदनी चैनल वालों की जो हमें करने का मौका दिया है। तो सिलसिला लाने की पूरी जो प्लानिंग होती है वो मदनी चैनल मजलिस की तरफ से होती है। आप हमारी मजलिस के लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह इनको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। आइए नाज़रीन देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 19 नंबर हैं मर्दान के, स्वात के और मदियन स्वात के, और 20 नंबर है लाहौर के। 1 नंबर से फिर लाहौर आगे बढ़ गया। ये कमाल का प्रोग्राम हो रहा है। हर सेगमेंट के बाद कोई एक टीम आगे बढ़ जाती है। अब सेगमेंट है, बड़ा प्यारा सेगमेंट है, फिक़े हनफी और उसके दलाइल। सवाल है स्वात वालों से, क्या टोपी या इमामा पर मसा करने से फर्ज पूरा हो जाएगा या नहीं? इससे मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान कीजिए। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की नज़दीक टोपी या अमामा पर मसा करने से फ़र्ज़ पूरा नहीं होता, बल्कि बालों पर मसा करना ज़रूरी है। अहनाफ का दलील हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रिवायत करते हैं कि बेशक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और सर के अगले हिस्से पर मसा किया, या ये फरमाया कि पानी से पेशानी की मिक़दार सर पर मसा किया। यानी नबी पाक ने इमामा उतार कर बालों पर, सर पर मसा किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बहता हुआ खून वुजू तोड़ देता है या नहीं? इसके मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा के नज़दीक बहता हुआ खून वज़ू तोड़ देता है। दलील हज़रत सैयदना तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बहने वाले खून पर वज़ू है। हर बहकर निकलने वाले खून पर वुजू है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फजर की सुन्नत कबलिया फर्ज के बाद पढ़ना कैसा, इससे मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की नज़दीक जिस शख़्स ने फजर की सुन्नत नहीं पढ़ी हो तो फजर नमाज के बाद वो नहीं पढ़ सकता। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अहनाफ का दलील ये है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा से सुना कि इसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब भी थे और रावी फरमाते हैं कि मुझे उन सब में से महबूब है। वो फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है फजर के बाद नमाज पढ़ने से यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए और असर के बाद यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो जाए। अच्छा, तो अब किसी की फजर की सुन्नतें रह गई हैं तो फजर की फर्ज और बेहतर ये है, मुस्तहब ये है कि वो जब सूरज तुलू हो जाए तो क़ज़ा की नीयत क़ज़ा के तौर पर वो सुन्नतें अदा कीजिए। सूरज तुलू होने के बाद कज़ा के तौर पर पढ़ेगा, यानी 20 मिनट के बाद। नाजरीन, ये बड़ी प्यारी हमने हदीस पाक सुनी, मैं ज़रा दोबारा बयान कर देता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत इब्न अब्बास, उनसे मरवी है कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के कई सहाबियों से सुना जिनमें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब भी हैं, जो मेरे लिए उन सब में महबूब हैं, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया फजर के बाद नमाज पढ़ने से यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए और असर के बाद यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाए। तो अगर किसी की फजर की सुन्नतें रह गई और जमात में वो शामिल हो गया या उसने फ़र्ज पढ़ लिए तो अब सूरज तुलू होने के 20 मिनट बाद वो पढ़ सकता है, उससे पहले नहीं पढ़ सकता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नमाज जनाजा की तकबीरात में रफ़ा यदैन करना कैसा, इससे मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। नमाज जनाजा में तकबीरात में रफ़ा यदैन के हवाले से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला के नज़दीक ये मौक़िफ़ है कि नमाज जनाजा में रफ़ा यदैन नहीं किया जाएगा, फ़कत पहली तकबीर में हाथ को उठाया जाएगा। दलील सुन्नत तिरमिज़ी की जामे तिरमिज़ी की हदीस मुबारक है। हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस मुबारक के रावी हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ी, सिर्फ पहली तकबीर में हाथों को उठाया, रफ़ा यदैन फरमाया और उसके बाद आपने अपने दाएं हाथ को बाएं पर रख लिया। जी जनाब, सिर्फ पहली तकबीर में हाथ उठाएंगे, बाकी नमाज जनाजा की तकबीरों में हाथ नहीं उठाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या खूबसूरत सिलसिला है, क्या खूबसूरत सेगमेंट है कि इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ कुरान और हदीस से जान रहे हैं और फ़िक़्ह हनफ़ी के दलाइल जान रहे हैं। माशाअल्लाह, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलना है, मगर एक कॉल शामिल करते हैं। मस्जिद के इमाम की जिम्मेदारी सरअंजाम दे रहा हूँ। माशाअल्लाह सिलसिला कितना प्यारा, ज़हनी आजमाइश सालों साल इसका इंतज़ार रहता है। माशाअल्लाह बहुत खुशी होती है देखकर। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुसूसी तौर पर अब्दुल हबीब भाई को दोनों जहां की भलाइयाँ नसीब फरमाए, हम सबको ईमान बराफियत के साथ खात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन आमीन। और मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए अब्दुल हबीब भाई। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, खुश रखे। नाजरीन, अब अगला सेगमेंट है, उससे पहले आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं। जनाब 23 नंबर है स्वात वालों के, 24 नंबर है लाहौर वालों के। अगला सेगमेंट कुछ तलाश करना है। क्या तलाश करना है, क्योंकि सेगमेंट का नाम ही यही है, तलाश कीजिए। जनाब स्वात के इस्लामी भाई आगे आएंगे और कुछ तलाश करेंगे इस बोर्ड पर। मार्कर आपके पास होगा, 30 सेकंड्स होंगे आपके पास और आप हमें तलाश करके बताएंगे। जी जनाब, पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि क्या आज तलाश करना है। ये मार्कर लीजिएगा, मैं अभी आपको बताता हूं आपने क्या तलाश करना है, फिर आपका टाइमर शुरू हो जाएगा। आज आपने हमें तलाश करके देना है मुज़म्मिल। 30 सेकंड के अंदर तलाश कीजिए। यानी जनाब इन्होंने तो थोड़ी देर में ही जनाब मुज़म्मिल जो है तलाश कर लिया है और इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
बहुत जल्दी तलाश कर लेते हैं जनाब। लाहौर के इस्लामी भाई आइए। अच्छा, ये लफ्ज जो आपने अभी मुकम्मल करवाया, इसका तलफ़ुज़ क्या है? लोग मुज़म्मिल मुज़म्मिल बोलते हैं। इसको मुज़म्मिल पढ़ेंगे क्योंकि तशदीद है, तो इसको पढ़ने में थोड़ा सा एहतियात करनी होगी। जी बारी है लाहौर वालों की। लाहौर वाले आ जाएं और ये मार्कर लीजिए और अब तलाश कीजिए, और आपने तलाश करना है फातिहा। 30 सेकंड्स के अंदर फातिहा। ज़हनी आजमाइश की मजलिस से गुजारिश है कि ये जनाब सेकंडों में तलाश कर लेते हैं, इनके लिए कोई मुश्किल काम कीजिए। बहुत शुक्रिया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब आ जाए भाई, फिर आ जाए हमारे यहाँ मौजूद इस्लामी भाई, और लफ्ज तौबा तलाश करके दे। तौबा, खैबर पख्तूनख्वा, स्वात वाले। जनाब बड़ी जल्दी तलाश कर लिया है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सीधे हाथ से आ जाए भाई, लाहौर वाले आ जाए, आ जाए माशाअल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम मोहम्मद तलाश करके बताएं। थर्टी सेकेंड्स है आपके पास, सुकून से तलाश कीजिए। जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब देखें यहां हाजरीन में से किसी को बुलाते हैं। हाजरीन में से कौन आएंगे? कोई मदनी फीस देकर आए तो क्या बात है मदीने की। उन्होंने नियत की है कि मैं इंशाल्लाह दाढ़ी एक मुट्ठी पूरी कर लूं। पूरी एक मुट्ठी करेंगे, अब तक जो कटवाई इसकी तौबा भी कर लें इंशाल्लाह। क्या बात है, मैं तौबा करता हूँ इंशाल्लाह। माशाल्लाह, आइए आइए माशाल्लाह, ये बड़े प्यारा आपने हमें तोहफा दिया। आपके लिए भी यादगार रहेगा कि आपने कब नियत की थी। माशाल्लाह। चलें, ये मार्कर लीजिए और आप यासीन तलाश करके दीजिए। चलें, आपको सवाल भी आसान दे दिया। यासीन, यासीन, जल्दी कीजिए, आपके पास 9 सेकंड रह गए हैं। वैसे तो 2 लफ्ज है, लेकिन जाहिर है कि 2 लफ्ज ही ढूंढना मुश्किल हो जाता है। या और सीन को ढूंढ लेना भाई। चले मैं इनकी मदद कर देता हूं, क्योंकि ढूंढ लिया, यही है ना, या और सीन, यासीन। चले जनाब, दाढ़ी शरीफ मुबारक हो आपको, अल्लाह आपको खुशियां नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया। कोई तोहफा भी पेश करे भाई माशाल्लाह। गिलाफे काबा शरीफ के धागे और क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चले जनाब, हमारा सेगमेंट ये कंप्लीट हुआ। हम एक बार फिर स्कोर बोर्ड की तरफ जाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह वक्त हुआ है हम नात ख़्वानी भी करेंगे और नेक अमाल का जायजा भी लेंगे। दोनों टीमों से गुजारिश है, नेक अमाल का जायजा लेने से पहले अब्दुल हबीब भाई, आप तो माशाल्लाह यहाँ पर तोहफे बंटवाते रहते हैं, आपके लिए एक तोहफा आया है। अरे वाह माशाल्लाह। और ये तोहफा क्या है, मैं चाहूंगा कि आप ही अपने हाथों से दिखाएं। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत डायरी है, और इस डायरी में क्या है ये आप बताएंगे। क्या बात है, शुरू हो गया डायरियों का सिलसिला। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक लिखे हुए हैं, और कमाल यह है कि बड़े प्यारे अंदाज में लिखे हुए हैं। अल्लाह अकबर। आप जरा देखें कि पूरी डायरी हजारों, हो सकता है कि बहुत बड़ी तादाद में दुरूद पाक है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आप देखें नादरीन, कितने प्यारे दुरूद पाक हैं। अच्छा जरा देखें, इसको कैमरे के करीब करें जी, जरा दिखाएं नाजरीन को कि कितने प्यारे अंदाज से, बहुत कलरफुल अंदाज में नबी पाक पर दुरूद पाक। और अच्छा मजे की बात यह है कि अलग अलग सीगे हैं दुरूद पाक के। तो सैयद साहब ये तोहफा उन्होंने भिजवाया। अच्छा एक हदीस पाक भी है ना कि अगर जो कोई बंदा दुरूद पाक लिखता है तो जब तक वो दुरूद पाक लिखा रहता है उसको उसकी नेकियां मिलती रहती हैं। जिन्होंने लिखा है उनके लिए तो ये सदका जारिया हो गया माशाल्लाह। फर्स्ट पेज पे इन्होंने लिखा है कि कब इन्होंने लिखना शुरू किया है, हाँ, और कब मुकम्मल किया। 21/2/2025 को लिखा है और 12/10 यानी 8 महीनों में उन्होंने ये लिखा है। और माशाल्लाह उन्होंने हदीस भी लिख दी है कि जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तगफार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। तो भाई जिन्होंने लिखा उन्होंने तो वारे न्यारे अपने कर दिए, और आपका तोहफा का बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं ये तोहफा मैं किसी को दे दूं। किसको तोहफा दूं? सुभान अल्लाह। रोजाना सबसे ज्यादा आप में से दुरूद पाक कौन पढ़ता है? चलिए ये मुकाबला कर लेते हैं। कोई ऐसा हो जो बताए कितनी बार अंदाजा नाप पढ़ते हैं? सारे सच्चाई बताएंगे। अच्छा या टीम में से भी कोई चाहे तो बता सकते हैं कितने दुरूद पाक पढ़ते हैं आप रोजाना, कम हो बेश?
2000 बार पढ़ लेते हैं? अरे वाह भाई, हाँ भाई 2000 से ज्यादा वाला कोई है? रोजाना 2000 से ज्यादा वाला जी, कितने पढ़ते हैं? 6300 रोजाना पढ़ते हैं। अल्लाह क्या बात है यार, दावत इस्लामी में अब इनकी ज़हनी आजमाइश भी चल रही है। 6300 से ज्यादा वाला भी कोई है जी? 12000 रोजाना पढ़ते हैं, यानी आज पढ़े सिर्फ या पढ़ते हैं रोजाना? रोज 12000? 1 लाख से ज्यादा हो गए कह रहे हो। 1 लाख हो गए पिछले दिनों के अंदर। एक हफ्ते में 1 लाख दुरूद पाक पढ़ चुके हैं आप? हाय हाय हाय, कैसे माशाल्लाह, अल्लाह आपके सदके मुझे भी दुरूद पाक पढ़ने वाला बना दे। ये है मेरी दावत इस्लामी और ये अमीर अहले सुन्नत का फैजान। ये नौजवान बुरी बातों से बचकर इस उम्र में दुरूद पाक की ऐसी कसरत करते हैं यार, मेरा ख्याल है आप डिजर्व करते। मैं तो आप सबसे बड़ा खुश हो गया माशाल्लाह। सब नियत कर ले इंशाल्लाह रोजाना से कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे। ये इस्लामाबाद टीम आइए दोनों टीमें आ जाए। क्या बात है माशाल्लाह, ये दिल खुश हो गया माशाल्लाह कि ऐसी दुरूद पाक की लगन अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। नाज़रीन प्लीज ये वजीफा अपना लीजिए, ये गमों को दूर करने वाला, मुसीबतों को दूर करने वाला, मदीने ले जाने वाला, इश्क रसूल बढ़ाने वाला, दीदार रसूल करवाने वाला वजीफा है। आज से सब नियत करें कि रोजाना कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चले माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम इस्लामी भाई अपने नेक अमाल के रसाइल निकाल लीजिए और जिनके पास रसाइल नहीं है मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी जो है वो आप अपना जायज़ा ले सकते हैं। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ नेक अमाल का जायज़ा करते हैं। नंबर 1, अच्छी अच्छी नीयतें की, 5 नमाज़ें बाजमात अदा की, हर नमाज से पहले नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फातिमा, सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल चिनान से 2 सफ़ात तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़े या सुने, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नजरी से बचते हुए निगाहें नीची रखी, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसातुल मदीना बालिगान में पढ़ा या पढ़ाया, ईशा की जमात से 2 घंटे घर पहुंच गए, 2 घंटे दीनी कामों में सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फे रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, जोहर की सुन्नत कबलिया फर्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशराक चाश पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत कबलिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ गीबत और चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा किया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी दिल तायद न करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दापोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ ना कुछ जायज़ कामों से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्स दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ाकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक मस्करी तंज़िल अदारी और कहका लगाने से बचे, अमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह तबारक व तआला हमें इखलास के साथ नेक अमाल को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। आइए नाज़रीन, अब वक्त हुआ है इंशाअल्लाह नाज शरीफ में सब शामिल हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। साथ काफिला हश से हमें उठा क्यों सोते हैं उनके साए, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगा क्यों सुनने अला सल्ले अला
को जा मन को जा तू को जा मन को जा साए ज़ात हो मेरे खैरात का साए ज़ात हो मेरे खैरात हो तू सखी में गदा तू सखी में गदा तू सखी में गदा तू को जा मन को जा 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 डगमगाऊं जो गाला नाला नाला सामने आए तेरा तस्वुर मुझे थाम दे बोलो मेरी खुश किस्मती है तेरा बोलो मेरी खुश किस्मती है तेरा उम्मती मेरी खुश किस्मती मेरी खुश किस्मती मेरी खुश किस्मती है तेरा उम्मती तू जज़ा मेरी तू जज़ा मेरी तू जज़ा मेरी तू को जा में अनवार बांधे हुए आंसुओं की ज़बा हो मेरी तर्जुमा आंसुओं की ज़बा हो मेरी तर्जुमा आंसुओं की ज़बा हो मेरी तर्जुमा दिल से निकले सदा तू को जा मन को जा तू को जा मन को जा तू को जा मन को जा तू जा मन को जा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मैं उम्मेहानी अत्तारिया बिनते बिलाल मजरी जर्मनी से बात कर रही हूँ। आपका प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश बहुत अच्छा लगता है, हम शौक से देखते हैं। मेरा लाहौर की टीम से ये सवाल है कि अल्लाह करीम ने किस नबी अलैहिस्सलाम को किस जगह पर चप्पल उतारने का हुक्म फरमाया था। क्या बात है, अब तो डायरेक्ट टीम से भी सवाल आना शुरू हो गए भाई। बिलाल भाई की मुन्नी है ना, क्या बात है जी। बताएंगे किस नबी अलैहिस्सलाम को चप्पल उतारने का हुक्म दिया? जी जी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर मूसा अलैहिस्सलाम जी 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 माशाल्लाह। अगली कॉल दीजिएगा। हाजी अब्दुल हमीद साहब, बहुत आपको मुबारक हो, आपकी टीम को, जो ज़हनी आज़माइश की टीम है सारी, हम सब की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे दोस्तों की तरफ से और जो मेरे साथ बैठ के देख रहे हैं, इन सब की तरफ से मुबारक पेश करना चाहेंगे। मेरे दोस्त जो कई सालों से ज़हनी आज़माइश देख रहे हैं, पूरा साल इंतजार रहता है क्योंकि ये मालूमाती प्रोग्राम होता है, दिलचस्पी होता है। अल्लाह आपको और आपके तमाम दोस्तों को भी सलामत रखे। जहाँ से भी आपने कॉल की है, दावत इस्लामी के मरकज़ में होने वाले इज्तिमात में ज़रूर शिरकत किया करें। अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम अली रज़ा तारी है, मैं गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह ज़हनी आज़माइश शिद्दत से इंतजार रहता है। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में ये भी सेगमेंट होना चाहिए, खानदानी रिश्ते। खानदानी रिश्ते का जो है वो सैयद साहब बैठे हैं, सैयद साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। चलिए भाई मजलिस भी नोट कर ले और हो सकता है कि रिश्ते, ये खानदानी रिश्ते सेगमेंट जल्द आ जाए। बहुत शुक्रिया आप सबका। वक्त हुआ है, हम बच्चों से कुछ हदीस की वीडियोस मंगवाते हैं ताकि इस बहाने हदीस पाक याद भी हो जाए। तो उम्मीद है कि वीडियोस आ गई होंगी। आइए वीडियोस देखते हैं और फिर आपको आज की हदीस बताएंगे जो आपने नोट करनी है और कल प्रोग्राम से पहले हमें उसकी वीडियोस भेजनी है। आइए देखते हैं आज की हदीस। मेरा नाम मोहम्मद रमजान रजा है, मैं जर्मनी से बात कर रहा हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इरशाद फरमाया कि तुम इस बात पर राजी नहीं कि तुमको मुझसे वो निस्बत है जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से थी, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं
है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि तुमको मुझसे वो निस्बत है जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से निस्बत थी, मगर ये कि मेरे पास कोई नबी नहीं। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी हदीस थी। आज की हदीस भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नोट कर लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल का निज़ाम हुकूमत उनके अंबिया किराम अलैहिस्सलाम चलाते थे। जब भी एक नबी जाता तो उसके बाद दूसरा नबी आता था, और बेशक मेरे बाद कोई नबी नहीं है। जरा गौर तो करे कितनी हदीसें हैं खत्म नबूवत के हवाले से। जब याद कर लीजिए, इस हदीस की पिक्चर ले लीजिए और कल इसकी वीडियोस बना के आज रात तो और कल दोपहर तक भिजवा दें तो इंशाल्लाह सेलेक्टेड वीडियोस चलाई जाएंगी। आइए नाजरीन, एक बार फिर स्कोर बोर्ड देखते हैं और मुकाबले को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। स्वात या लाहौर, कौन सी टीम आज आगे जा रही है? जी जनाब, 27 नंबर है स्वात वालों के, 28 नंबर है लाहौर वालों के। अब चलेंगे सेगमेंट जिसका नाम है कुरानी मालूमात। सवाल करेंगे स्वात वालों से, ईमान वालों को प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम भेजने के मुतालिक कुरान क्या फरमाता है। बड़ी मशहूर आयत और उसका तर्जमा सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। तर्जमाए कंजुल ईमान, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। ऐ ईमान वालो, उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। जवाब दुरुस्त कर दे दिया है। मिलकर दुरूद पाक भी पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लाहौर वालों से सवाल है, ईमान वालों को तकवा इख्तियार करने, सच्ची और हक बात कहने के मुतालिक अल्लाह का प्यारा कलाम कुरान क्या इरशाद फरमाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी बात कहो। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी बात कहो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। स्वात वालों से अब सवाल करेंगे मगर कुछ पिक्चर दिखाएंगे। कौन सा कुरान का वाकया है और कहां है ये कुरान पाक में, बताइए। 5000 भी लिखा है और किसी मैदान की तस्वीर भी है। क्या मुराद है इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तस्वीर में जिस वाक़े को इशारा हुआ है ये जंग बदर का वाक़या है जिसमें 5000 फरिश्ते नाजिल हुए थे, और ये वाक़या सूरह आला इमरान पारा नंबर 4 में जिक्र हुआ है। जंगे बदर का वाकया, जब मुसलमानों की मदद के लिए 313 ईमान वाले थे, सामने कुफार की तादाद ज्यादा थी, 5000 फरिश्तों की जरिए मदद की गई। जंगे बदर में यह वाकया कुरान पाक के पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान में है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है लाहौर वालों की, बताइए कौन सा वाकया है ये। सत्तर हजार और 7 कुछ कब्रें नजर आ रही है। 70,000 फरिश्ते और 70,000 मुर्दे जिंदा हो गए। पारा नंबर 2 सूरह बकरा। किस नबी अलैहिस्सलाम के ये दौर का वाकया है? हजरत सैयदना हिज़कील अलैहिस्सलाम की कौम का बड़ा ही हैरान कुन वाकया। 70,000 लोग मर गए, फिर अल्लाह के हुक्म से जिंदा हुए। ये वाकया कुरान में पारा नंबर 2 सूरह बकरा में है। और इस वाकये से सबक ये मिलता है कि मौत से कोई भाग नहीं सकता। जिस लम्हे जिस मकाम पर मौत आनी है वो आनी है। अल्लाह हमें अपनी मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नाज़रीन, कुरान पाक के खूबसूरत सबक आमोज वाकयात पढ़ने
और समझने के लिए मकतबतुल मदीना की किताब खजाइन अजायबुल कुरान गराइबुल कुरान हासिल कीजिए मकतबतुल मदीना से। मुख्तलिफ ज़बानों में इसका ट्रांसलेट भी हो चुका है, आप चाहे तो दावत-इस्लामी.net से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मदनी चैनल के कुछ सिलसिले हैं जिसमें कुरान पाक के वाक़यात को बयान किया गया, जिनमें से एक किस्सा है कुरान से और पैगाम कुरान, अगर आप सर्च करेंगे आपको सोशल मीडिया पे वो मिल जाएगा। वक्त हुआ है नाजरीन आखिरी सेगमेंट की तरफ जाने का, क्योंकि यही सेगमेंट फैसला करेगा दोनों टीमों से कौन सी टीम आगे जा रही है। मगर उससे पहले अपना स्कोर बोर्ड देख लेते हैं। 31 स्वात, 32 लाहौर। आखिरी सेगमेंट शुरू करने से पहले कॉल शामिल करते हैं। मोहम्मद वासा तारिया माजिला रिमिया खान से अर्ज कर रहा हूँ, हम सब घर वाले जानिए हमारे प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। अल्लाह ताला अब्दुल्ला बी भाई को नजर बस से बचाए। माशाल्लाह, चले आपकी दुआओं का शुक्रिया। आखिरी सेगमेंट जो फैसला करेगा कौन सी टीम आगे जा रही है, कौन सी पीछे रह जाएगी। और आज सेगमेंट का नाम क्या है? सफर है। रहमतुल्लाह भाई यहाँ आ जाएं और यहाँ से इस्लाम यहाँ आ जाएं। जनाब, स्वात वाले लाहौर और लाहौर वाले स्वात टीमों में एक एक इस्लाम भाई यहाँ जाएंगे, क्योंकि मशवरे की गुंजाइश नहीं है। सफर है मगर अकेले, आपने या तो सही कहना है या गलत कहना है। शाह हुसैन साहब आपकी बारी है। इमाम शाफई हम्बलियों के इमाम हैं। गलत। शबे बैराज शाबान की 15 तारीख को होती है। सही। कुरान में हजरत अबू बकर रदियल्लाहु तआला को उलुल फजल फरमाया गया। सही। मशहूर किताब बहार शरीयत फिक्र के मौजू पर है। सही। मस्जिद आयशा मदीने में है। सही। जनाब, गलतियां हुई हैं आपसे, और कितनी गलतियां हुई हैं? 2 गलतियां कर ली हैं। मस्जिद आयशा मदीने में नहीं बल्कि मक्के में है, और शबे मेराज 15 शाबान को नहीं जनाब 27 रजब को होती है। जनाब, बारी है उसामा की, लाहौर से ताल्लुक है। तयम्मुम में सिर्फ 2 फराइज हैं। गलत। लफ्ज दाऊद के 4 हुरूफ हैं। सही। मौलाना नकी अली खान अलैहिर्रहमा आला हजरत के चचा हैं। गलत। जंग में हजरत बाबा बुल्ले शाह का मजार है। गलत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हुरूफ हैं। सही। जनाब, उसामा ने 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अब बारी है रिहान खान फ्रॉम स्वात। तफसीर जलालैन इमाम गजाली की मशहूर किताब नहीं है। गलत। सूरह नमल 19वें पारे में है। गलत। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। सही। खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। सही। घर में अगर कोई ना हो तो दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहें। सही। जनाब, आपने भी काफी गलतियां की हैं और शुरू के 3 सवाल के आपने गलत जवाब दिए हैं। अब बारी है उमैर की, लाहौर से ताल्लुक। इमाम आजम अबू हनीफा के मशहूर कसीदे का नाम कसीदा बुर्दा है। गलत। नमाज के 7 शराइत हैं। गलत। सूरह आले इमरान कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है। गलत। नूर वाला आया है, कलाम आला हजरत का है। गलत। पानी पीने के बाद आखिर में यरहमुकल्लाह पढ़ना चाहिए। सही। जनाब, ये भी गलती था। 4 गलत आपने सही कहे थे, 1 गलती की है, 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब आखिरी इस्लामी भाई हैं और जिनका ताल्लुक नेमतुल्लाह स्वात से। अब तक तो नेमतुल्लाह ने बड़े अच्छे जवाब दिए हैं। अब बारी है हजरत अस्मा बिनते यजीद हजरत अबू बकर रदियल्लाहु तआला की बेटी है। गलत। सीधे हाथ से खाना सुन्नत है। सही। मुस्नद इमाम आजम किताब इमाम आजम ने नहीं लिखी। गलत। खड़ी हरकत को 1 अलिफ की मिकदार के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। सही। सूरह बकरा 4 पारे में मुकम्मल होती है। गलत। जनाब, 1 गलती आप कर गए हैं, 4 नंबर हासिल किए हैं। अब लाहौर के बिलाल की बारी है। जनाब, लाहौर के बिलाल भाई, हजरत सुल्तान बाहू का मजार मुबारक मुल्तान में है। गलत। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान 25 सफर शरीफ को पैदा हुए। गलत। शाबानुल मुअज्जम 8वां महीना है। गलत। सूरह जिन 30वें पारे में है। गलत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 1000 साल थी। सही। जनाब, 1 गलती आपसे हुई है। शाबान 8वां ही महीना है, लेकिन जनाब आज का मुकाबला लाहौर वाले जीत गए हैं। अच्छा मुकाबला किया स्वात वालों ने। एक वक्त तो ऐसा लगा कि स्वात की टीम लगता है कल जिस तरह बलूचिस्तान ने इस्लामाबाद वालों को पीछे छोड़ा, आज स्वात वाले आगे बढ़ जाएंगे। मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। स्वात के इस्लाम में दिल छोटा ना करें, आपको मौका मिलेगा। दोनों टीमें आगे तशरीफ ले आएं, अच्छी तैयारी करके दोबारा आइएगा, फिर इंशाअल्लाह क्या मालूम स्वात की टीम आगे बढ़ जाए और हमारे अगले मुकाबलों में पहुंचे। नाज़रीन, एक बार स्कोर बोर्ड आपको दिखाएंगे कि किस तरह मुकाबला चलते चलते लाहौर वाले आगे निकल गए।
जनाब स्कोर बोर्ड की तरफ भी जाएंगे और हम हमारी डिजिटल कुरान दाजी है, अगर वो रेडी हो तो बताइएगा, हम उसकी तरफ भी जाएंगे और नाजरीन को इंशाअल्लाह बताएंगे। आज का जो सवाल हम आपसे कर रहे हैं, जो आपने कल जवाब शुरू होने से पहले, सिलसिला शुरू होने से पहले देना है, 4 पुश्तों के सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम बताएं। 4 पुश्तों के सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम बताएं। जनाब ये आपने मैसेज करना है। आतिफ भाई कुरानदाजी के लिए आ गया नाम वगैरह? जी बताइए, जो सवाल किया गया था उसकी। सवाल ये था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह अन्हु का नाम क्या था? तो दुरुस्त जवाब है अली औसत बिनते बिलाल अत्तारी डेरा इस्माइल खान, गुलाम मुर्तज़ा विहाड़ी बिनते नवाज अत्तारिया चनियोट, अकरम शाह अत्तारी खारादर कराची, मोहम्मद अब्दुल्ला अत्तारी आरिफ वाला बिनते फरीद अत्तारिया कराची, बिनते गुलाम फरीद अत्तारिया फतेह जंग, बिनते मोहम्मद रमज़ान अत्तारिया सरगोदा, बिनते अजहर अत्तारिया इस्लामाबाद, हुसैन हैदराबाद, अखलाक अत्तारी मीरपुर माथलो, मोहम्मद अहमद रज़ा अत्तारी बिन मुश्ताक अहमद शेखुपुरा। आज जिनका कुर्रा में नाम निकला है बिनते मोहम्मद रमज़ान अत्तारिया सरगोदा। माशाअल्लाह। चलिए जनाब, आज के बेस्ट परफॉर्मेंस का जो हम अवार्ड दे रहे हैं, हमारे उमैर को दे रहे हैं माशाअल्लाह, बिलाल जो लाहौर से है माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वैसे लाहौर की सारी टीम और स्वात की सारी टीम बड़ी कमाल की है। अच्छा जनाब, अब बारी है स्कोर बोर्ड देख लेते पहले, फिर अब डिजिटल कुरानदाजी की तरफ चलेंगे। जी 40 नंबर स्वात, 45 नंबर लाहौर वालों ने हासिल किए। डिजिटल कुरानदाजी की तरफ चलते हैं। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। आइए देखते हैं किसका जवाब दुरुस्त है और किसको आईडी, कौन सी आईडीज को इनाम मिल रहा। सही जवाब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम था। और अब 5 आईडीज नोट कीजिए जिनको आज तोहफा जाएगा। इस ऊपर वाले नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए इस स्क्रीनशॉट को आपकी आईडी के साथ, तो इंशाल्लाह हम आपको देंगे। जनाब मारिफतुल कुरान, एक खूबसूरत तोहफा हर सिलसिले में हम देते हैं। आज किसको चाहिए? चले फिर कुरानदाजी कर लेते हैं। आप में से किसी के नाम हो सकता है निकल आए, कुरानदाजी के जरिए आज इंशाल्लाह देंगे। जनाब नंबर भी बड़ा प्यारा है, 5 5 फिर 5 0 550 550 वाले भाई मौजूद हैं तो आ जाएं, वरना फिर हम दोबारा पर्ची निकालेंगे। 5550 5550 वाले भाई मौजूद हैं? नहीं है, चले दोबारा कर ले भाई। अब वो बेचारे बाद में हो सकता है वुजू वगैरह करे चले गए हो। चले जरा अब देखें किसका नंबर निकलेगा। 5554 55554। कमाल हो गया, ये लगता है साथ साथ आए थे। 5550 5554। अब अगर तीसरा नहीं निकला ना तो फिर मैं ले जाऊंगा फिर ये घर। चलिए जनाब 5494। माशाल्लाह आ गए भाई, आ गए माशाल्लाह, आ जाए। चले अब कल मुकाबला किसका किसके साथ है आइए आपको बताते हैं। पेशावर का मुकाबला है चिश्तिया से। एक और खैबर पख्तूनख्वा की टीम है, पेशावर और चिश्तिया के दरमियान कल मुकाबला होगा। बच्चों की कुरानदाजी भी हो गई है। 5549 बच्चों में अगर मौजूद है तो आ जाए भाई, छोटे मियाँ आ जाएं और ये भी तोहफा ले लें। ये लीजिए। चले जनाब माशाल्लाह। क्या करते हैं आप? जामिअतुल मदीना में पढ़ते हैं माशाल्लाह। देखिए तालिब इल्म तक तोहफा जा रहा है माशाल्लाह। कुरान पाक पढ़े, बरकतें लूटें। आ जाए छोटे मुन्ने, आप भी ले लें माशाल्लाह माशाल्लाह।